So let the people come in this room, and meanwhile, I'm going to start because the time is over now. It is 3:07 p.m. right now. So I'm going to start. Okay, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. So today we are here in the session to learn about what is the problem solving with the business, with the problem that you are going to deal with for creating something new into a product or services. Like when you are carrying or taking forward the innovation, your career endeavor, etc. Meanwhile, or along with, we are also will be discussing on the ideation. So let's begin with understanding the startup or business or entrepreneurship. Okay? Because everything, every innovation, every single the practice that you have done or you are doing or you are anticipated to do, that is actually for entrepreneurship or converting or translating this into a business and a business model that will be later treated as a startup or business. So let's understand what is the business startup. So when we consider the word startup, it has no exact definition, no exact meaning. Like uh, we can treat it, we can understand the business, the venture as a startup, okay, whether it is a small scale level or a large scale. For example, Flipkart is a huge company right now. Paytm is huge company right now. Paytm has also introduced their IPOs, so we can understand how scale we can scale up with this business as a market size. Same time, some students, the group of students who are actually practicing inside the BHU with AIC, Atal Incubation Center, they had just started their business that is on the baby stage. That is also a business. That is that the small level that will also considered as a startup. The big one like Paytm that will also considered as a startup. So a startup is nothing except a venture. The venture that should have that understanding that about the consumer's needs and accordingly to present the solution of that certain problem. So what is the startup? Startup is a venture which can have that potential to understand the consumer's needs and the capability to present or express to deliver something as a solution of that certain problem in unique way. That is the startup. Doesn't matter the what is the size of the company that is startup. Doesn't matter what is the area, what is the expertise area in which they are actually dealing with it. Okay, so we can understand what is the startup. So while practicing the business as an entrepreneur, as a startup, in such scenario, we have to, as I said, told you with the during the defining the startup to understand the consumer's needs and solve their problem. So three keywords are important in the definition. First is problem, second is solution, and third one is the needs, consumers' needs. So the problem is the measure, the first stage that you have to identify before doing any entrepreneurial practices or innovative practices. After identifying the problems, then you will go ahead with identifying or procuring solutions, the possible solutions that can have that potential to solve the problems in the society at large. In between these both phases, you have to do something like empathy to understand what the consumers needs. So the consumers need that will reflect in the problem that you have identified.
Okay, the fulfillment of that certain problem as a solution that will also have the reflection of the consumers. Okay, so the understanding about the consumer needs later, next on the next stage, translating it into a problem, then dealing with all the practices for presenting a solution, problem solution. This is a cycle of a startup, and the innovation is the key of rotating the cycle. This is startup cycle. So innovation is very important because whatever you are going to identify and what are you going to deliver against that identified item, the medium will be the innovation. डजंट मैटर कि वो आपका क्या प्रोडक्ट है, उसका लुक क्या है, वो फिजिकली क्या दिखेगा, क्या फंक्शनिंग होगा, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि वो इनोवेटिव है। हाँ, इनोवेशन है। तो स्टार्टअप किसी भी तरीके का हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस प्रैक्टिस में हम जो जिसको हम लेटर ऑन उसको कमर्शलाइज कर सके या फिर हम उसको एक बिजनेस मॉडल में प्रेजेंट कर सके। ठीक है, उसके लिए जो भी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को लेके जो साइकिल बनता है, उसमें हम अल्टीमेटली एक एंटिसिपेटेड सॉल्यूशन को डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाद में उसको हम डिलीवर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी में एग्जिस्ट होने वाला प्रॉब्लम है वो एक लार्ज लेवल पे जाके सॉल्व हो, और उसको हम कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो इस फेज में हम क्या करते हैं, हमारे लिए इनोवेशन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जो इनोवेशन की बात करते हैं एज ए प्रैक्टिस, देखिए ये मैं पूरे ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, हम लोगों के ब्लड में है डूइंग इनोवेशन, है ना, कोई नई चीज नहीं है ये। हम अगर जो भी सिविलाइजेशन हम जानते हैं लास्ट टाइम में, इंडस वैली जानते हैं, ठीक है, बेबीलोनियन जानते हैं, मेसोपोटामिया जानते हैं, जो भी सिविलाइजेशन जानते हैं, ठीक है, वहां से लेके आज तक हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, जो हमें एविडेंस के रूप में मिलते हैं जब एक्सकवेशन होता है, ठीक है, हम देखते हैं कि इनोवेशन तब भी का आज भी है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि प्रैक्टिस होता हुआ आया है ना। अब अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके सोल्यूशन तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे फेजेस हैं। ठीक है, जिसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आइडिया को डेवलप, ठीक है, जैसे ही प्रॉब्लम हमें पहचान हो जाती है कि दिस इज द प्रॉब्लम, जस्ट आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड what the problem what the solution can be discussed, addressed. That is actually an idea। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी किसी नॉर्मली प्रैक्टिस से, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो इवॉल्व होता है, उसके अंदर शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है ना, फिर वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है ना, इस तरीके से एक एक ये ह्यूमन बीइंग होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जांपल लूं, ठीक है, या फिर मैं इसको बोलूं कि अ, मेरे पास एक मेरे पास आइडिया है, मुझे पता है, मेरे अंदर वो बिलीव है, जो मेरे पास जो एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस या पैराग्राफ में जिसे आइडिया बोल रहा हूँ, जो जो किसी फिक्स सर्टेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, उस उस आइडिया को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसको उसको लेके मैं कुछ बना सकता हूँ। आई नो, आई हैव दैट बिलीव। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली वो
बेबी फेज होता है, जब वो बेबी जन्म लेता है, अभी उसको बोलना नहीं आता, अभी उसको चलना नहीं आता, अभी उसको कुछ कहना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो जो भी करता है सब कुछ सांकेतिक रूप से करता है, ठीक है, वो फेज है। यहाँ पे आपको उसको नर्चर करने की, अगर आप नर्चर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप से जो उसका विकास होना होगा तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने सोचा होगा, एंटिसिपेट किया होगा कि मुझे अपने बेबी को जो है ये एटिकेट सिखाना है, ठीक है, इस स्ट्रीम में लेके जाना है, ठीक है, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, वो नहीं होगा। फिर वो वही बनेगा जो उसके सराउंडिंग में चीजें बना रही, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि जब हम आइडिएट कर लेते हैं, हमारे पास कोई आइडिया आती है, ठीक है, तो उस आइडिया को लेके हम बैठते नहीं हैं, हम उसको इवॉल्व करेंगे, तो उसको लेके कहीं आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई एक फिजिकल आउटपुट हम डेवलप कर सके, ठीक है, जिसका एक मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, अल्टीमेटली सोसाइटी में हर वर्ग, हर लोग, जो लोग उस प्रॉब्लम से को फेस करते हैं, उनके पास उसकी पहुंच हो, तक उनके पास एक रिचेबिलिटी हो, ठीक है। उसके उसके बाद उसकी फेजेस के लिए, उसको इवॉल्व करने के लिए हमें कई सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जब हमारे पास आइडिया होता है, ठीक है, तो वी शुड नेवर थिंक कि हम जो है एक सिंगल प्रॉब्लम को के लिए जो है बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जब हम आइडिएट कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास एक सर्टेन एक प्रॉब्लम आया, ठीक है, You फॉर are muted. एग्जांपल प्रॉब्लम, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो सपोज यू हैव सम आइडिया, ठीक है, सम प्रॉब्लम, ठीक है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बीच में जिक्र करना चाहूंगा कि जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें, सवाल ये तो आएगा ना, प्रॉब्लम आए कैसे, ठीक है, बहुत सही बात है कि मतलब कि प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत सारी एग्जिस्ट करती है ना, लेकिन सवाल ये आता है ना कि हम अ, जो प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं, या जो प्रॉब्लम्स जो लोग प्रैक्टिस में हैं, वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो करते कैसे हैं? अगर मान लीजिए एज ए इनोवेटर या एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर या फिर इनोवेटर, अगर मुझे किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना करना होगा, तो वो मुझे मिलेगा कहाँ? देखिए, उसका जो की होता है ना, वो होता है ऑब्जर्वेशन, आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज मोर, है ना। तो आप अब जो भी आपका पर्सनल लाइफ होता है, आपकी आपका डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन के अलावा आपकी सराउंडिंग में लोग होते हैं, उन लोगों के डेली रूटीन्स होते हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, बैठ के गॉसिप्स होते हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक स्पेशल मुद्दों पे आपकी बातचीत होती है, ठीक है, तमाम तरीके से जो है आप आपके साथ एक दैनिक दिनचर्या में तमाम ऐसी चीजें होती है, ठीक है, जिन चीजों से हम प्रॉब्लम को डिग आउट कर सकते हैं, है ना। ये तो एकदम बेसिक लेवल का ऑब्जर्वेशन है। अगर मान लीजिए कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के फेज में हैं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि नाउ हम जो भी ऑब्जर्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, वी हैव टू बी सो स्पेसिफिक, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक होने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, उस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, जैसे कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। आप लोग कभी डिटेल में कहीं मिले इन सब चीजों के बारे में तो आप पढ़िए भी, ठीक है ना। और है ना, इसको थोड़ा सा ही मैं बता रहा हूँ, है ना। तो आप कई बार जो है पार्टिसिपेट करके, जैसे कि जो प्रॉब्लम होती है, जो जिस कम्युनिटी के अंदर वो प्रॉब्लम हो रही है, उस कम्युनिटी में जाके उसमें उनके बीच में रह के बातचीत करके, जिसको हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में इम्पैक्टी बोलते हैं, उसको करके इम्पैथाइज करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में है कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है प्रॉब्लम को बहुत आसानी से, उन प्रॉब्लम को, बेसिक प्रॉब्लम को पा सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है।
जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। अब उसको डिफाइन करने की जरूरत है कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ या जो मैं फील कर रहा हूँ वो है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन के टाइप्स हैं, जो मतलब एक प्रोफेशनली ऑब्जर्वेशन जिसको डिफाइन हम कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट मेकिंग कर सकते हैं, उन टाइप्स को चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन पे फोकस कर रहा हूँ, देन हमें इम्पैथी करना चाहिए। हमें उस कम्युनिटी में जाना चाहिए रैंडमली, किसी भी पीपल के पास, किसी भी पर्सन के पास, और उनसे जो हमारे पास एक सेट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उससे उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली हम कुछ क्वेश्चंस बना के रखेंगे अपने पास, उस क्वेश्चन को उनसे पूछेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ बनाते समय या पूछते समय हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछना। उससे क्या है, जो रिस्पॉन्स आता है ना, उस रिस्पॉन्स की जो वैलिडिटी होती है वो हमेशा क्वेश्चनेबल होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लेके हमें दो चार अलग अलग सपोर्टिव, ठीक है, एक ऐसे स्टेटमेंट्स बनाना चाहिए कि जो आपस में मिलके एक उस क्वेश्चन का आंसर दे सके, जो आपका ऑब्जर्वेशन में है, जो आपके ऑब्जर्वेशन को वैलिडेट करने के लिए काफी हो, है ना। तो हम एम्पैथाइज कर सकते हैं, जाके पूछ सकते हो, उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, एक रिस्पॉन्डेंट एनालिसिस कर सकते हैं, और हम वहाँ पे मीन मीडियन मोड कुछ भी करके, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करके, ठीक है, हम जो है उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम डिस्कस। देखिए इसका फायदा क्या होता है कि जब हम इनोवेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की प्रैक्टिस करते हैं, तो अर्ली स्टेज पे ही हमें ये पता चल जाता है कि जो प्रॉब्लम हम जिसके पे काम करने जा रहे हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो जाता है कि प्रॉब्लम, अब आप आपने इस चैनल के थ्रू एक प्रॉब्लम, एक सर्टेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की बात करें, तो जब जिसके लिए आपको काम करना है, देखिए किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 20 50 कितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन आपको उनमें से ये तय करना पड़ेगा कि आप किसी एक सोल्यूशन पे फोकस करें, ठीक है, जो कि पूरे मास को जो एड्रेस करे, तो पूरे मास के लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता हो। ठीक है, अब क्या होता है कि अच्छा, अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक पहुंचने में हमने ये तो तय कर लिया कि कोई एक सोल्यूशन हो जिसका हमें एड्रेस करना हो। ठीक है, अब जो आपके सॉल्यूशंस होंगे, वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फेज होता है, ये जो एक चक्र होता है, इसको अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम पहले इंस्पिरेशन से जाएंगे, जो कि डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, मतलब कि वहां पे क्या होता है कि आपके पास क्या डिजाइन चैलेंज है, आप बताते हैं मैं यहाँ से कैसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकता हूँ, मुझे कैसे जो है ह्यूमन सेंटर्ड ही रहना है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से आप इंस्पिरेशन पे वर्क करते हैं, उसके बाद आप आइडिएशन करते हैं। ठीक है, आइडिएशन में क्या बोलते हैं, मतलब कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं। बात ये आती है कि अब मुझे किस तरीके से इंटरप्रेट करना है जो कुछ भी मैंने समझा है ना, और जो भी टेंजिबल आइडियाज है, जिसको जो फिजिकल आइडियाज हो सकते हैं, उस उन चीजों पर मेरा इंसाइट क्या है, उसको प्रेजेंट करना। अकॉर्डिंगली हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हाउ हाउ आई एम गोइंग टू डेवलप अ प्रोडक्ट। ठीक है ना, जब हमारे पास प्रोटोटाइप डेवलप हो जाता है, ठीक है, या पीओसी डेवलप हो जाता है, मतलब जस्ट बिफोर फेज ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि
हम ये सोचते हैं कि नाउ वी आर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, मान लीजिए प्रोटोटाइप भी डेवलप हो गया, टेस्टिंग भी हो गई, नाउ इट इज एक्चुअली एड्रेसिंग द सोल्यूशन। आप लोग बाहर बात कर लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आप जो है एड्रेस कर सकते प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। नाउ यू आर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब एज ए बिजनेस मॉडल, अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात ना करूँ, सिर्फ मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो आप जब प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं ना, उस डेवलपमेंट का जो फेज होता है, जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप बना लिए हो, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज माना जाता है। तो जो आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है ना, वो कन्वर्ज होता है। ठीक है, उसके पहले जो जब आप किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो आपका डाइवर्ज है ना। ठीक है, तो अब जब हमें वर्क करना होता है प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ, जब हम आइडिएट करते हैं, तो हम लोगों के पास बहुत सारे जब आइडियाज आते हैं, हम मैं जैसे मैंने बताया कि आपको उन आइडियाज पे वर्क करना चाहिए जो कि सिंगल हो और मास को एक साथ एड्रेस करता हूँ। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर एक आइडिया हमें स्टिमुलेशन करना चाहिए। स्टिमुलेशन करते समय क्या है कि हमें जितने भी आइडियाज हैं सबको लिस्टिंग करनी चाहिए, और सबको जो है ना कुछ की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स बना के उसकी ग्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, और उसकी ग्रेडिंग वर्स्ट टू बेटर या बेस्ट करना चाहिए। एकदम वर्स्ट पॉसिबल आइडिया क्या है, तो बेस्ट पॉसिबल आइडिया क्या है। ठीक है, और उस हिसाब से उसको, चाहे आप उसको वर्स्ट टू बेस्ट लाइए, चाहे बेस्ट टू वर्स्ट लाइए, डजेंट मैटर, लेकिन आपको इसी तरीके से ग्रेडिंग करनी चाहिए। और जब इसको ग्रेडिंग करेंगे, जब की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स आप बनाएंगे, तो उसमें जरूर कुछ पॉइंट्स को डालना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को की सोल्यूशन की बात करें, ओवरऑल सोल्यूशन की बात करें, मतलब कि अगर मैं किसी अदर फैक्टर्स को वहां पे मैं लूँ कि नहीं क्लास। ठीक है, मैं अगर उससे रिलेटेड जो अदर फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को मैं कंसीडर ना करूं, बस इतना देखूं कि क्या ये आइडिया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम उसको उस ये एक उसकी ग्रेडिंग करें कि अगर वो दे रहा है तो कितना परसेंट कर रहा है, दे रहा है मान लो। तो एक एक की आपकी जितने भी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स बनेंगे, उसमें एक इंडिकेटर ये हो गया। दूसरा इंडिकेटर हो गया कि कितने लार्ज स्केल पे, कितनी बड़ी कम्युनिटी को ये डिलीवर हो सकता है। ठीक है, उसको भी मान लीजिए परसेंटेज पे कर लिया, लिक्विड स्केल पे कर लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, या 7 तक। ठीक है, उसके बाद आपने ये इंडिकेटर तय करना है कि द मोस्ट फिजिबल। ठीक है, बजट के हिसाब से देख लिया कि द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव क्या सोल्यूशन है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें निकाल के उस तमाम इंडिकेटर्स बनाइए, और उन इंडिकेटर्स को कुछ परसेंटेज या लिक्विड स्केल पे जाके ग्रेडिंग करिए। ग्रेडिंग करने से क्या होगा, अब ये जो ग्रेडिंग कर रहे होंगे, तो आपके पास जितने भी आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज में आप बेस्ट आइडिया को आसानी से निकाल सकते हैं, जिस पे आप वर्क करेंगे। ये क्या करेगा, एक तो अर्ली स्टेज पे आपको जो है एक राइट पाथ देगा कि आपको जो करना है, ठीक है, वो यही है ना। और बीच में क्या करना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए और भी ज्यादा आश्वस्त होना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, जो आपके बेस्ट 3 या 5 आइडियाज हैं, ठीक है, उनको वैलिडेट कर लीजिए। ठीक है, वैलिडेट करने के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप में पीर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, कुछ सर्वेज वगैरह कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, और लोगों का ओपिनियन जो है उसको जनरेट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब आप मान लीजिए कि कोई एक आइडिया पिक कर लिए। ठीक है, तो अब आप इस आइडिया को पिक करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस का जो है जवाब आपको लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो आपके एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जिनके लिए आप एक सोल्यूशन का जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वे कौन है। ठीक है ना, वे कौन है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, नंबर ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, क्योंकि वही जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जब वो मार्केट में लॉन्च होगा, तो वही आपके जो है टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। ठीक है, टारगेट एरिया वही होगा। ठीक है, जब हम आपसे आपने सुना होगा ऐसा कि स्टार्टअप में क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि आपका
एक एंटिसिपेटेड मार्केट क्या होगा, मार्केट साइज क्या होगा। मतलब कि अगर आप ग्रोथ को एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कि क्या ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी मार्केट जो है 10 साल में कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करेगी, कितने लाख की रेवेन्यू। तो वो जो जनरेशन होता है, तो उसके लिए जब वो कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ये जानना जरूरी होगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जहाँ तक आपका आपके प्रोडक्ट की डिमांड जहाँ पे होगी, ठीक है, और इमीडिएट कितने लोग होंगे, ठीक है, फिर आपकी कैपेसिटी क्या है कि कितना आप जो है सप्लाई कितना कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। तो इमीडिएट जो होता है उसको जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पेन पॉइंट कहाँ तक है, उसका रेंज रेंज क्या है, ठीक है। जो टोटल है एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन, उन पॉपुलेशन में कितने परसेंट पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनको इमीडिएट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो वो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं पेन पॉइंट की ही बात करूं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो जो प्रॉब्लम है जिसको आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उस प्रॉब्लम के अंदर उस प्रॉब्लम के अंदर या उस प्रॉब्लम को लेकर जो कस्टमर है, ठीक है, जो सॉरी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो पॉपुलेशन कहाँ तक दिक्कत महसूस करे, उसकी जो डेली रूटीन है या लाइफ स्टाइल है या जो जो भी कुछ एक्टिविटीज वो करता है, ठीक है, उन उन एक्टिविटीज में प्रॉब्लम किस तरीके से उन एक्टिविटीज को वो इफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो इसका आंसर होगा ना, ये आपको दो दो चीजें, पहला तो आपको इन्वेस्टर्स को ये डिफाइन करने में बहुत हेल्प करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना जरूरी है लॉन्च होना, ठीक है। उसी के साथ साथ ये भी डिफाइन करने में बहुत मदद करेगा कि जो है ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल क्या है, इसके एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, मार्केट एक्सपेंशन की बात करें, तो पोटेंशियल क्या हो, ये क्योंकि यही, देखिए, जो इन्वेस्टर होगा उसको सिर्फ फैक्ट फिगर से मतलब है, ठीक है। अगर एंटिसिपेटेड फैक्ट फिगर भी है तो उसमें भी उसको जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, उसकी एबिलिटी क्या है, उससे मतलब है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को, उस आइडिया पे वर्क करने के लिए इंटरेस्ट तो करेगा ही, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप उस आइडिया को लेकर ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, ठीक है ना। ब्रेन स्टॉर्म में आप वही करेंगे जो मैंने बोला कि परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स बनाइए, और बना के उसको जितने भी आइडियाज हैं सबको लिस्ट करिए, सबको ऐसे ऐसे करिए, है ना, उसमें से बेस्ट निकालिए, फिर उसके बाद उसको वैलिडेट भी कर लीजिए सर्वे वगैरह। और जब आपको फाइनली जो आइडिया मिल जाता है जिस पे वर्क करना है, अब उसको लेके आप फर्दर स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आप कैसे उसको उसको एक प्रोडक्ट की या सर्विस के रूप में डेवलप करें, ठीक है। तो देखिए, इन सब चीजों के बीच में आपके पॉपुलेशन के साथ एम्पैथाइज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, है कि नहीं। वहां पे उनको सुनना, देखना, ऑब्जर्व करना, ये तीनों चीजें, और आपको क्या फील हो रहा है, महसूस क्या कर रहा है, ये चारों चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से, अब मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट डेवलप हो गया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को लेके आप मार्केट में उतरना चाहते हैं, है ना। अब मार्केट में उतरने के लिए आपको क्या करना है कि कई सारी चीजों की नीड पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको ये देखना है कि अब आपके पास जो है, सॉरी, आपके पास आइडिया हो गया, आइडिया पे वर्क कर लिया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अब मार्केट में उतरने वाले हैं। अब आपको, आपके पास बहुत तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, जिन सवालों के लिए आपको मेंटर की जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ प्रैक्टिस करना शुरू हो गया, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते समय कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आए, जैसे कि आपको ये नहीं पता है कि आपको मार्केट में आपको प्रोडक्ट को लेकर मार्केटिंग कैसे करना है, तो आपको ऐसे मेंटर्स बनाने चाहिए जो आपके, जहाँ पे जो आपका लेग पॉइंट है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी में आप पीछे हैं, आपकी जो नॉलेज है उसका जो रेंज है, या
जो बेसिक नॉलेज भी है आपका टेक्नोलॉजी में नहीं है, आपका बिजनेस आइडिया है, ठीक है, देन आपको मेंटोर जो है टेक्नोलॉजी के लिए, जो आपका रिलेवेंट टेक्नोलॉजी है उसके लिए जरूर चुनना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के लिए, लॉजिस्टिक के काम आता है तो लॉजिस्टिक के लिए, ठीक है। इसके बाद अब आपको जो है ना टीम बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टीम बनाना और मेंटर चुनना दोनों वैसा वर्षा हो सकता है, या तो पहले आप टीम बना लीजिए फिर मेंटर चुनिए, चाहे लीजिए फिर टीम चुनिए, लेकिन मेंटर पहले चुनने से फायदा होता है। मेंटर पहले चुनने से फायदा ये हो जाता है कि जब आप टीम का चुनाव करते हैं तो उस सिचुएशन में, उस फेज में आप बहुत जल्दी ही आप अपने लिए सबसे प्रासंगिक यानी रिलेवेंट टीम जो है वो तैयार कर ले, है ना। और वो टीम ऐसे ही बनाना चाहिए कि जो, जैसे कि अगर मार्केटिंग के लिए कोई आपको व्यक्ति चाहिए तो आप मान लीजिए, चाहे वो पार्टनरशिप या स्टेक शेयरिंग या फिर सैलरी, किसी तरीके से आप टीम बना रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा बेसिक जो आपकी जरूरतें हो, ठीक है। जैसे मार्केटिंग है तो क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो बिजनेस मॉडल को डेवलप, क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो सेल्स प्रमोशन के की जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको अच्छे से समझता हो और क्विकली जो है उसके लिए वो डिसीजंस बना सके जिनके थ्रू जो आप सेल्स को मैनिपुलेट कर सकें इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। इस तरीके से आपको टीम बनाना चाहिए, है ना। टीम बनाने के बाद अब आप एग्जीक्यूट करेंगे और पूरे बिजनेस करते समय आपको तमाम प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। और हर प्रॉब्लम में आपके पास सॉल्यूशन देने का काम आपका मेंटर करेगा। जैसे बड़ी कंपनीज में बोर्ड ऑफ एडवाइजरी, तो वो जो एडवाइजरी बोर्ड होती है, ठीक है, वही एक तरीके से मेंटोर का काम करता है। दे हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी प्रॉब्लम आती है ना। तो इस तरीके से आप जो है वर्क करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कुछ नहीं पूछना है? चलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है? आवाज साफ नहीं आ रहा। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, मतलब नहीं समझ में आया। सर आप बेसिकली आइडिया और सॉल्विंग का बात कर रहे हो, तो उसमें जैसे अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं फॉर एग्जांपल कि चॉकलेट या कुछ, तो उसमें आइडिया और ये क्या हो सकता है? वैसा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक कैसे बिल्कुल, यहाँ तो आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, देखिए इनोवेशन को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक? अच्छा, अब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट का अपना एक एग्जिस्टिंग मार्केट है, बड़े बड़े ब्रांड भी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो गया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना। तो अब देखिए, प्रॉब्लम दो तरीके से आपको सोचना चाहिए। पहला प्रॉब्लम ये है कि एक ये है कि आप जो है एक नए बिजनेस का, एक नए प्रोडक्ट का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा वही, अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप चुनाव करते हैं तो उसके एक्सटेंशन, उसके मार्केट से लेके जो प्रॉब्लम्स आती है, जो जिसमें आपका आएगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि आपने मान लीजिए प्रोडक्ट बना ही ली, तब आपके साथ दिक्कत आया, ठीक है, कि भाई बड़े बड़े ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, उनका अपना एक मार्केट है, उनके अपने एक सेट कस्टमर्स है, लॉयल कस्टमर्स है, ठीक है। तो उस वहां पे आपके लिए एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पे आप मेंटोर्स वगैरह के साथ आप डिस्कस करेंगे, जैसे कि वो आपको बताएंगे कि आपको ब्रांडिंग पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इनोवेशन को अगर प्रेफरेंस देते हैं आप, तो आप क्या करेंगे कि अपने चॉकलेट में अब जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल सर्वे करेंगे, ठीक है। उस सर्वे के थ्रू आप ये पता करेंगे उन चॉकलेट्स को अगर क्रिटिकली इवेलुएट किया जाए तो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मान लेते हैं शुगर है, शुगर ज्यादा है, अगर मान लीजिए कोई एक बार खाता है, ठीक है, 40 ग्राम का एक बार खाता है एक दिन में, तो उसके पास वो उतने के लिए मान लीजिए कि बहुत सारा कैलोरीज जो है
वो अपने कैलोरी का इनटेक कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिल गई। अब आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे चॉकलेट्स बनाने, जितने भी ब्रांड्स, जितने भी तरीके के चॉकलेट्स अवेलेबल है, ठीक है, वहां पे जाके आपने इसी चीज को क्रिटिकली सबका इवेल्युएट किया, करने के बाद आपने क्या किया कि ये कंक्लूजन बताया कि जितने भी चॉकलेट्स मौजूद हैं, सभी चॉकलेट में जो सबसे कम शुगर लेवल जिसमें है 40 ग्राम पर 40 ग्राम बार से, तो वो मान लीजिए कि इतने कैलोरीज जो है इंटेक कराता है। ठीक है, मान लीजिए वो 1500 कैलोरी इंटेक कराता है। तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम ये आ गई। अब आप जब चॉकलेट बना रहे हैं ना, तो आप अपने चॉकलेट के अंदर यूएसपी यही बनाए कि द मोस्ट शुगर, द मिनिमम चॉकलेट विद मिनिमम कैलोरी, है ना। ओके तब सर। आप ये टारगेट बना सकते हैं कि मैं चॉकलेट बनाऊंगी उसके अंदर 200 से ज्यादा कैलोरी नहीं होगा उसका 40 ग्राम बार खाने में। तो ये आपका यूएसपी हो जाएगा, यही आपने आपका इनोवेशन काम है। ठीक है, अब आप मार्केट में जाके अपने उस बड़े बड़े कॉम्पिटिटर के सामने खड़ा हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को और जब प्रोडक्ट फिट की बात करते हैं ना, मार्केट प्रोडक्ट फिट की बात करते हैं, तो वहाँ उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें से एक एलिमेंट ये भी होता है कि आपका यूएसपी जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है मैनिफेस्ट कर रहा है कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, एनीवन थैंक यू एल्स सर। कैन, कोई और जिसका कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए, तो अब आगे, ये तो आपका आइडिएशन हो गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोनों टॉपिक हो ही गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम बिजनेस में होते हैं, ठीक है, देखिए हम बिजनेस के बीच में बिजनेस करते समय, देखिए ये प्रॉब्लम का, एक नए नए प्रॉब्लम का आना बड़ी रेगुलर सी बात होती है, वो जनरल होती है, और बिजनेसमैन जो है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, यूज टू भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस को एंटिसिपेट कर रहे होते हो, उसका मॉडल डेवलप कर रहे होते हो, तो एक आप लॉन्ग टर्म गोल बना, ठीक है, उस लॉन्ग टर्म गोल को डेवलप करते समय, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप देखिए, जितना लंबा गोल होगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के सामने कोई भी बात रखने के लिए आपके पास बहुत कॉन्क्रीट जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने जो गोल एंटिसिपेट किया है जितने टाइम के लिए, एक तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, जो आप अपना नेटवर्क बताते हैं, नेटवर्क कह रहा हूँ, जो आप अपना एक बिजनेस साइज बताते हैं, अकॉर्डिंगली बताते हैं। ठीक है, तो अब उसके ना, उसको डिवाइड करना चाहिए। आप लोगों ने, कई लोगों से सुना भी होगा कि अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, ठीक है, तो वही करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, और उनको ना अचीव करने के लिए वहां पे भी आपको केपीआई ध्यान रखिएगा। की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स इतना यूजफुल टूल होगा अपने जितने जो भी आपका अचीवमेंट है उसको उसको इवेलुएट करने के लिए, उसको रेट करने के लिए, है ना। क्योंकि आप जब भी कहीं जस्टिफाई करना होगा तो आपके पास बड़ा अच्छा तरीका रहेगा कि आपने ये केपीआई डिटरमाइन किया था, आपने अचीव को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, जो आपका अचीवमेंट रहा है, और आपने आपका केपीआई स्कोर ये रहा, मिनिमम इतना रहना चाहिए। ठीक है, और आपको उससे ज्यादा या कम जो भी है आप बताएंगे। अगर मान लीजिए कम है तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे जो है कुछ कमियां रह गई हैं। देखिए, लंबे समय के बाद आके फेल हो जाने से बेहतर ये है कि अगर फेल होने की गुंजाइश है तो आपको पहले ही पता चल जाए, ताकि आपका जो लॉस है, जो आपका रिस्क रिस्क जो कवर है, वो पहले से ही मैनेज हो जाए। ठीक है, एक कम स्केल पे ही अगर घाटा होना है तो हो, ठीक है, या फिर बहुत पहले ही आप समझ जाए, ठीक है, ताकि आप उस चीज को डील कर सके, है ना। तो ये चीज है इम्पोर्टेंट, और ये इसलिए यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, क्योंकि इन्हीं चीज को लेके आपका जो प्रॉब्लम, बीच बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बिजनेस के आते रहते हैं, वो इन्हीं की वजह से आते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी गोल 20 साल का गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है 20 साल का, अगर मान लीजिए उसको इवेलुएट करने के हर तिमाही, हर 3 महीने पे अगर इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप जो है आपका जो एक तो जो नुकसान है वो 3 महीने का नुकसान आपको पता चला, बाद में नहीं पता चला। अच्छा, 20 20 साल का आपका गोल है, तो अब आपके पास इनफ टाइम है कि आप जहाँ गलती कर रहे हैं उस गलती को पकड़े और उसको सुधारें, ठीक है, और आगे बढ़े, है ना। तो एक तो ये जो चीज है ना, जब आप गलती को पकड़ते हैं तो वहां पे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट आता है ना, वहां पे फिर वर्क करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो उसके सोल्यूशन के लिए आपको आइडिएशन करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिएशन, ये एक ऐसी सिस्टम होगा, एक ऐसा टूल होगा आपके लिए, जो आप अगर इनोवेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो जब तक आप कर रहे हैं, ठीक है, उस बिजनेस के पूरे लाइफ स्पैन में आप हट गए, कोई और आ गए, तो भी ये चीज जो है उसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, ठीक है। चाहे आप स्ट्रक्चरल वे में करें, चाहे अनस्ट्रक्चरल वे में, डील करनी तो है ही, ठीक है। कोई क्वेश्चन? एनीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ठीक है, फिर क्लास यहीं पे इस सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस सेशन के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज में, कुछ आपके नॉलेज बैंक में इजाफा हुआ होगा और आपके Yes, sir. काम का होगा, ठीक है। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। Thank you, sir. और I have another announcement that in the series of this MIC 4.0 activities, tomorrow we have session with with DGM of Hindustan Times Group, uh, uh, another company of Hindustan Times Group, श्री निगम जी, ठीक है। उनका कल एक लेक्चर होगा दोपहर 2 से 3, ठीक है, कल। वो होगा प्रोडक्ट फिट मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन, ज्वाइन इट एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। Okay, sir. Thank you, Thank sir. you, bye, sir. Thank you, sir. Yes, Thank thank you. you. Thank you, sir. Sir. सर 1 मिनट। हाँ हाँ, पूछिए। जैसे आप सर कहें किसी गोल को प्राप्त, मतलब कि किसी भी चीज को हम, जैसे कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको पहले हम छोटे छोटे भागों में करके और उसको समझना चाहेंगे। तो सर ये एक कैसा सिस्टम होगा अगर हम किसी मतलब किस तरीके से उसको हम डिवाइड कर पाएंगे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम सर समझना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि एक्चुअली गोल की तरफ था, बिजनेस आपने स्टार्ट करा है या करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका एक होता है, जैसे कि जी मान लीजिए कि आप जी कोई एक प्रॉब्लम पे वर्क की एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। और आप प्रोडक्ट को जी बनाते समय मान लीजिए आप मार्केट साइज, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी, उनके नंबर को एक आइडेंटिफाई किया, एंटिसिपेटेड नंबर होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो कभी नहीं आएगा, है ना। तो वो एंटिसिपेटेड नंबर मान लीजिए कि आपका एक जो आपके प्रोडक्ट को लेके जो एक पॉपुलेशन का साइज होगा, वो मान लीजिए कि 20,000 फॉर जी एग्जाम्पल, ठीक है। जी तो अब आप टारगेट बनाएंगे कि मुझे अपने प्रोडक्ट को इन 20,000 तक लोगों तक पहुंचाना है, यानी इनको बेचना है, ठीक है। अब इन जी बीस सर। हजार लोगों तक पहुंचाने में मुझे समय कितना लगेगा, ये एंटिसिपेट कर लेंगे। मान लीजिए आपने एंटिसिपेट किया कि इन 20,000 तक लोगों को पहुंचाने के लिए मुझे 2 साल तक लगेंगे, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ जी डिवाइड जी करना चाहिए कि आपने क्या किया, 2 साल में 24 महीने होते हैं, आपने 2 2 महीने का जो है ब्रेकेट बनाया, 12, कि मैं पहले दो जी महीने में कितने लोग करूंगा डिलीवर, दूसरे 2 महीने में कितने लोग करूंगा, तीसरे। अब ये जो डिवीजन होगा, जो यहाँ पे जो जी सर। नंबर डालेंगे ना, उसका आधार क्या होगा, ये समझना जरूरी है, ठीक है। उसका आधार ये होगा, देखिए शुरुआत में आपके जी पास जो संसाधन होंगे वो लिमिटेड होंगे, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस कम होगा, यस सर, यस ठीक सर, है। आप रिस्क कम यस लेना सर, चाहेंगे, उस आधार पर आपके नंबर्स कम होंगे, ठीक है। देखिए वो इसका, यस सर। अब एग्जैक्टली नंबर इवेलुएट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपके पास रिस्क कवर एबिलिटी कितनी है वो देखनी चाहिए, मतलब कितना नुकसान आप उठाने के लिए तैयार है, जिससे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतने उतने अमाउंट में यस आपके सर। कितने प्रोडक्ट जो है डेवलप हो सकते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। उतना नंबर आप रख लीजिए पहले दिन में,
अब पहले 2 महीने में उतना डिलीवर कर देंगे, प्रॉफिट अर्न हुआ होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस आएगा, संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा। अब आप और ज्यादा रिस्क कवर करने, यस सर, रिस्क कवर एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आप उसी के अकॉर्डिंग फिर से नंबर बढ़ाएंगे, फिर से नंबर बढ़ाएंगे, और आप इस तरीके से आपने अलग अलग किया। अब मान लीजिए कि अब आपने ये सब सेट कर लिया गोल, अब पहले 2 महीने में आपने डिलीवर किया, जी, मान लीजिए आपने सोचा था कि पहले 2 महीने 20,000 में से मैं 400 लोगों को डिलीवर करूंगा, ठीक है ना? यस सर, और आप पहले दो यस महीने सर, में 400 लोगों के बजाय आप सिर्फ 100 लोगों को डिलीवर कर पाए, ठीक है, तो वो 25% रहा, तो आप यस ये सर, कहेंगे तो बहुत कम रहा, तो बहुत कहीं न कहीं कई कई जगहों पे मेरी कमी आ रही होगी। हो सकता है कि प्रोडक्ट लोगों को समझ में ना यस आया सर, हो सकता है प्रोडक्ट जो है सही सोल्यूशन जो हमने टेस्ट किया है वो सोल्यूशन उनको दे नहीं पा रहा हो, या लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना नहीं जान पा रहे हो, या इसका प्रमोशन ढंग से नहीं हो पाया, या फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट में साथ यस कोई सर, दिक्कत हो, हाई कॉस्ट हो, अफोर्डेबल ना हो, या फिर हमारा जो यस एंटिसिपेशन है सर, पॉपुलेशन को लेके, पॉपुलेशन साइज को लेके वो गलत है, या फिर हमने फर्स्ट 2 वीक के लिए गलत फिगर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो इन सब में से क्या आपके लिए यस सर, प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, टीम के साथ बैठेंगे, मेंटर से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, है ना? अब मान लीजिए कि यहाँ यस पे सर, आपका यस सर, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, जैसे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, जो भी प्रॉब्लम निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आप पूरा सिस्टम फिर चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आपका जी, कम हुआ, तब अगर मान लीजिए आपका ओवर डिलीवर हो गया, ठीक है, तब आपको ये समझना चाहिए कि यस जो सर, आप, या तो ओवर डिलीवर होने का 2 रीजन हो सकता है, या तो प्रोडक्ट कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, और एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इन सब नजरियों से ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, या तो आपकी किस्मत अच्छी रही, यस सर, मतलब कि आपका प्रमोशन अच्छा रहा हो, ठीक है। अगर आपका यस प्रमोशन सर, अच्छा है तो जो आपका जो टारगेट टाइमिंग 24 मंथ का है उसको घटा देना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर प्रोडक्ट की यस सर, एबिलिटी ज्यादा है तो आपको फिर से रीस्केलिंग करना चाहिए मार्केट साइज को लेकर, जो आपके लिए होगा, जी, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप बढ़ेंगे, तो यही है, ये यस सर, रेगुलर प्रैक्टिस चलती रहती है, समझ में आया? यस सर। जैसे कि सर मार्केट में बहुत से ऐसे कंपनीज हैं, जैसे एक तरह से ले ले सर, वो आरसीएम का जैसे प्रोडक्ट हो जाता है सर, और वेस्टिज का प्रोडक्ट हो जाता है, और एमवे वगैरह वगैरह, ये सब सारे जो प्रोडक्ट हैं सर, ये तो हाँ, सर उसी तरह के बिजनेस है जैसे एक नेटवर्किंग टाइप करके और लोगों के तक पहुंचाने का। मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नेटवर्किंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये किसी भी प्रोडक्ट के का यस सिस्टम सर, यही होता है, जो आपका ये नेटवर्किंग बिजनेस होता है, मल्टी लेवल नेटवर्किंग, इनका देखिए कोई सेट थ्योरी तो है नहीं करने का, ठीक है, तो मुझे ये बिजनेस बिल्कुल नहीं समझ जी में आता, सर, जो मेन स्ट्रीम बिजनेस, ठीक है, उसके लिए देखिए वो जो मेन स्ट्रीम बिजनेस रन होते हैं वो एक्चुअली बहुत सारे थ्योरी के आधार पर रन है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क कवर वगैरह ऐसा, ठीक है, केपीआईज वगैरह के थ्रू। अब मल्टी लेवल में आप एक मेंबर बनाएंगे, आप सर्टेन उस मेंबर को ही बेचेंगे, वो मेंबर ऐसे, वो सब चीजें देखिए वो बिजनेस में बहुत लंबे समय exist करती नहीं है, ठीक है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत यस सारे सर, लोग मल्टी लेवल बिजनेस से जुड़े हुए होंगे, जो हमेशा दूसरे बहुत अच्छा अर्न कर लिए, बहुत अच्छा गेन कर लिए, उनकी वेल्थ बहुत अच्छी हो गई, उस पर डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन अपनी वेल्थ पे डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों की यस वेल्थ सर, अच्छी हो जाती होगी, ठीक है, लेकिन एक होलिस्टिक जी, डेवलपमेंट यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस होता है, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इट, ठीक है, हमारे पास जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी उनकी एथिक्स है, जो उनकी नियमावली है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसके अंदर रह के जो हम बिजनेस को कर सके, जिसके बाद जिसका हमारे पास पेटेंट हो, जिसका कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, देखिए उसी की विश्वसनीयता लोगों की होती है, उसी का मार्केट कैप जो है स्मॉल से लार्ज तक पहुंचता है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है फिर, यस सर, थैंक बिल्कुल। यू सर। यस सर, थैंक यू सर। चलिए गुड बाय, कल आप फिर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू ठीक है सर। सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ज्वाइन करेंगे।
हेलो।